Hello, my dear children, how are you? A very good morning to all my dear children. Today in maths textbook, we are going to start a new lesson. That is your lesson number 3. All of you will open your textbooks on page number 23. Lesson number 3, first of all, you are going to write today's date. That is 10/7/2021 and class work. Now dear children, after writing date 10/7/2021 and class work, after writing date you will start with the lesson in the textbook. Lesson 3, a trip to Bhopal. I hope you all have completed lesson number 2 in your textbook as well as in your workbook. Now in this lesson, we are going to study about how the trip is managed, how the distances are counted for, and how the things are calculated when you are going for a trip. Today, Sugandha is very excited. All the children of her school are going on a trip to Bhopal with her teachers. Miss Meenakshi and Mr. Rakesh are talking about the number of buses needed. Now here there's a school which is taking the children to the picnic. Now here the teachers are Miss Meenakshi and Mr. Rakesh. Now trip is going to Bhopal. ट्रिप कहाँ जा रही है? भोपाल पे जा रही है और बहुत सारे स्कूल के बच्चे जो है उस ट्रिप में पार्ट ले रहे हैं, जाने के लिए रेडी हैं. So the teachers over there, Miss Meenakshi and Miss Rakesh, they are counting that how many buses will be needed. So first of all, Miss Meenakshi says we will need 4 buses. Mr. Rakesh, I think we need at least 5. Miss Meenakshi, each bus has 50 seats. Mr. Rakesh, let us see how many children are going. Now यहाँ पर जो है मिस मीनाक्षी और मिस्टर राकेश के बीच में डिस्कशन हो रहा है कि जो है कितनी बसेस की ज़रूरत पड़ेगी. अब बसेस के लिए मिस मीनाक्षी ने कहा हमको एटलीस्ट 4 बसेस की ज़रूरत पड़ेगी. सो मिस्टर राकेश ने क्या कहा कि नहीं, आई थिंक वी विल नीड 5 बसेस, क्योंकि मिस मीनाक्षी ने कहा कि ईच बस मतलब हर बस के अंदर 50 सीट्स है. देयर आर 50 सीट्स इन वन बस. सो सबसे पहले तो ये कैलकुलेट करना है कि हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर देयर. मिस्टर राकेश सेड लेट अस सी that first how many children are coming to the picnic. Now here you can see this is the class and this is the number of children coming from each class to picnic. This is from class 1 to class 5. Class 1 33 students, class 2 32 students, class 3 42 students, class 4 50 students and class 5 is 53 students. Now here we have to find the total number of students. For finding total number of students, what we have to do is we have to do the addition of all these numbers. Here I have put the plus sign. The total comes out to 210. 3 plus 2 5, 5 plus 2 7, 7 plus 3 10, 0 carry 1, 3 plus 1 4, 4 and 3 7, 7 and 4 11, 11 and 10 is 21. So total 210 students are coming to the picnic. Now there is a small bubble over here. Do we need 4 buses? One bus can take 50 children and 4 buses can take 4 into 50, that is 200. यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? 4 into 50 is 200. 5 4s are 20 and 1 0, that is 200 students. यानी कि अगर 4 बस है और एक बस के अंदर 50 बच्चे बैठ सकते हैं, तो 4 बसेस के अंदर कितने बच्चे बैठ सकते हैं? 4 into 50 into 4, that is 200 children can sit in 4 buses. अब हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 210. अगर 4 बसेस करते हैं तो 10 स्टूडेंट्स जो हैं वो बच जाते हैं जिनको सीट्स नहीं मिलेगा. नाउ So there are total of 210 children going. मतलब total number of children कितने हैं? 210 they are going. If they get 4 buses, how many children will get the seats? अगर 4 buses है तो how many children are going to get the seats? 50 multiplied by 4, that is 200. That means 200 children will get the seats. 200 children को सीट मिलेगी अगर 4 buses हैं और हर बस में 50 seats है तब.
विल देयर बी एनी चिल्ड्रन लेफ्ट विदाउट सीट्स? येस. अब बच्चे ऐसे होंगे जिनको सीट्स नहीं मिलेगी. येस. हाउ मेनी चिल्ड्रन विल बी देयर? 10 चिल्ड्रन विल बी लेफ्ट विदाउट सीट. 10 बच्चे ऐसे होंगे जिनको सीट्स नहीं मिलेंगी. नाउ for just a few children we can't get another bus. We can share the seats. अब only for 10 children it is not possible to get a new bus. तो इसके लिए क्या करेंगे? सीट्स को शेयर करेंगे. Now dear children, we move on to page number 24. Page number 24 is waiting for the bus. That means now the children are ready and they are waiting for the bus to come. Sahiba jumps out of the line to see if the buses are coming. She shouts loudly, "Hey, I can see them. Run, grab the window seat." Many children start jumping in the excitement. अब जो होते हैं सारे बच्चे लाइन में खड़े हैं वहाँ पर बस के लिए वेट कर रहे हैं. You can see this is the school and all the children here are waiting in line for the bus to come so that they can board the bus. वो लोग बस में बैठ सके इसलिए. और तभी एक लड़की जो साहिबा है वो लाइन में से बाहर निकल के देखती है कि बस आ रही है कि नहीं. And suddenly she sees the bus coming, so she shouts कि loudly कि भाई बस आ रही है और जल्दी बस में चढ़ के विंडो सीट ले लेना है. Everybody likes to sit near the window seat so that can see the out from the window. और बहुत सारे बच्चे ये देख के खुशी में कूदने लगे. Stop! What is that? These buses are so small. और तभी टीचर ने देखा और कहा कि अरे रुको ये तो बहुत छोटी छोटी बसेस हैं. Now there is an argument. अब क्या होता है? आर्ग्यूमेंट होती मतलब there is a discussion. We told to bring big buses. हमने क्या कहा था कि बड़ी बसेस लानी है जिसमें 50 सीट्स हो. We did not have enough big buses, so we have got many buses. तो बस वाले ने क्या कहा कि मतलब टीचर ने बोला कि हमने तो 50 सीट वाली बड़ी बस के लिए कहा था और आप ये छोटी छोटी बस लाए हैं. तो what did the driver say कि भाई हमारे पास बड़ी बस इनफ नहीं थी, इनफ नंबर्स ऑफ बिग बसेस वर नॉट देयर, इसलिए हम छोटी छोटी मिनी बसेस लाए हैं, वो हमारे पास बहुत सारी हैं. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दिस पिक्चर देयर आर 1 2 3 4 5 बसेस आर हियर. यहाँ पे छोटी छोटी 5 बसेस हैं. Now we will read next one. Each mini bus can take about 35 students. How many mini buses are needed? अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि एक मिनी बस जो कि अब नई आई बस छोटी बस आई तो जो मिनी बस थी उस एक मिनी बस के अंदर 35 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं. तो अब 210 स्टूडेंट्स के लिए कितनी मिनी बस चाहिए दैट वी नीड टू फाइंड आउट. अब हमको पता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 210 एंड नंबर ऑफ सीट्स इन मिनी बस इन वन बस इज 35. तो हमको क्या करना है 210 डिवाइडेड बाय 35. दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ सीट्स इन वन बस. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 210 है और एक मिनी बस के अंदर सीट्स कितनी है 35 है. इन दोनों को डिवाइड करेंगे वी विल गेट द नंबर ऑफ सीट्स इन नंबर ऑफ बसेस नीडेड फॉर 210 चिल्ड्रन. हम अगर इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमको नंबर ऑफ बसेस मिल जाएंगे कि कितनी बसेस रिक्वायर्ड हैं आपको 210 स्टूडेंट्स को ले जाने के लिए. तो हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 210 एंड नंबर ऑफ सीट्स इन वन बस इज 35. तो 210 I have shown here the division also. 210 divided by 35 that is equal to 6. 5 6 are 30 and 6 3 are 18 plus 3 that is 21. तो completely divisible है to 35 से 210. That means you require 6 buses. तो complete 6 buses अगर हो जाएंगी तो सारे 210 students जो हैं adjust हो जाएंगे without sharing any seat. किसी को भी सीट जो है शेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. हर बच्चे को एक सीट कंप्लीट मिलेगी. अगर 35 की कैपेसिटी वाली बस आती है तो 6 buses are required. Now dear children, we move on to next page, that is your page number 25. Children, we move on to page number 25. Now here you can see the teacher or one sir is telling that the children to get into the bus fast as it has already been 9 o'clock because the buses came late, so it is late. Now the journey begins. As the buses start moving, children sing at the top of their voices. Some look outside to enjoy the view of the given green fields and the hills. Indira,
When will we reach Bhopal, Miss Asha? If we don't stop anywhere, we should reach there in 2 hours, that is around dash o'clock. Now जब बस में सब बच्चे बैठ गए और बस जर्नी स्टार्ट हो गई तो सारे बच्चे एंजॉय कर रहे थे पिकनिक में जाने के लिए, इसलिए सारे बच्चे कुछ गा रहे थे, कुछ जो है खिड़की से बाहर देख रहे थे और वो मज़े ले रहे थे हरे हरे खेत के और पहाड़ के। उसमें से एक लड़की ने पूछा कि हम लोग भोपाल कब पहुँचेंगे? तो मिस आशा जो टीचर थी उन्होंने क्या कहा कि अगर हम कहीं भी रुकते नहीं हैं तो हम 2 घंटे के बाद भोपाल पहुंच जाएंगे। सो नाउ हियर इन द ब्लैंक वी हैव टू राइट द टाइम, एट व्हाट टाइम वी विल रीच भोपाल। 9 o'clock शुरू हुआ और 9 o'clock के बाद 2 घंटे मतलब 10 o'clock एंड 11 o'clock, दैट इज 9 + 2 = 11। तो एट अराउंड 11 o'clock दे विल रीच भोपाल इफ दे डोंट स्टॉप एनीवेयर। Now next is Manjeet. Is it very far? Mr. भीमसेन, इट इज़ अबाउट 70 किलोमीटर्स। तो एक बच्चा बोलता है कि क्या बहुत दूर है? तो दूसरे सर ने क्या बोला? इट इज़ अबाउट 70 किलोमीटर्स। अंडरलाइन दिस, 70 किलोमीटर्स। कितना डिस्टेंस है जहाँ से वो लोग ने शुरू किया है वहाँ से भोपाल जो है 70 किलोमीटर्स है। रूबी, आर वी गोइंग टू स्टॉप एनीवेयर? तो रूबी ने पूछा, दूसरी एक लड़की ने पूछा क्या हम कहीं रुकने वाले हैं? तो मिस्टर राकेश ने क्या कहा? मे बी एट भीमबेटका अबाउट 50 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। अंडरलाइन दिस, भीमबेटका अबाउट 50 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। तो मिस्टर राकेश ने कहा शायद हो सकता है कि हम भीमबेटका करके एक जगह है जो कि यहाँ से 50 किलोमीटर्स है, वहाँ पर शायद हम हॉल्ट करें, ऐसा उन्होंने कहा। सो नाउ नेक्स्ट इज इफ़ दे आर गोइंग टू भीमबेटका देन दे विल रीच देयर। अगर वो लोग भीमबेटका पे रुकते हैं, अगर सपोजिंग स्टॉप करते हैं तो वो लोग कब पहुँचेंगे? बिफोर 10 o'clock, बिटवीन 10 o'clock एंड 11 o'clock और आफ्टर 11 o'clock। देखिए अब इसमें आंसर बहुत ही सिंपल है, ईजी है कि आफ्टर 11 o'clock। कैसे फाइंड आउट किया? अगर हम स्टॉप नहीं करते हैं तो 2 घंटे में पहुँचते हैं, दैट मीन्स 9 बजे चले और 2 घंटे 11 बजे पहुँचेंगे। लेकिन स्टॉप करेंगे तो ऑब्वियसली लेट ही होना है। इसका मतलब क्या है कि अगर वो भीमबेटका पे रुकते हैं तो वो लोग 11 बजे के बाद, दैट मीन्स आफ्टर 11 o'clock दे आर गोइंग टू रीच टू भोपाल। As they were talking, Bahadur shouts, "Hey, look at the Narmada! नर्मदा, एवरीवन लुक्स आउट ऑफ द विंडो। और तभी जैसे ये लोग सब बातें कर रहे होते हैं कि कहाँ रुकना है, कहाँ स्टॉप करना है, तभी उसमें से एक लड़का जो है बोलता है देखो नर्मदा रिवर को देखो। और सारे लोग जो हैं वो नर्मदा रिवर के खिड़की में से बाहर नर्मदा रिवर को देखने लगते हैं। यू कैन सी दिस इज द व्यू ऑफ द नर्मदा रिवर दैट इज शोन। नर्मदा रिवर हमारे गुजरात के साथ साथ मध्य प्रदेश, भोपाल इज इन मध्य प्रदेश, तो वो मध्य प्रदेश में भी वो नर्मदा रिवर है। So there also you can see the Narmada river as we can see in Gujarat. Ruby, wow, it is so long and so wide. Let us guess how wide it is. तभी रूबी देखते हैं, वो बोलते हैं कि नर्मदा रिवर तो कितनी लंबी और कितनी चौड़ी है। तो अब वो लोग गेस करते हैं कि देखते हैं कितनी चौड़ी है। Now we move on to page number 26. गोपी, 100 मीटर्स। तो गोपी उनमें से क्या बोलती है कि 100 मीटर्स? नो इट इज़ मच मोर, कांट से। तो गोपी क्या बोलते हैं कि नहीं, ये तो 100 मीटर से भी ज़्यादा लगती है और हम बता नहीं सकते कि कितनी बड़ी है। विक्टोरिया, इट मस्ट बी मोर देन हाफ अ किलोमीटर। यू कैन, इट मस्ट बी मोर देन हाफ अ किलोमीटर को सब लोग अंडरलाइन करेंगे। हाफ अ किलोमीटर, लाइक दिस यू कैन राइट हाफ अ किलोमीटर। इट इज़ मोर देन हाफ अ किलोमीटर। मिस आशा, लुक इट इज़ रिटर्न। और फिर मिस आशा जो है उनकी टीचर जो है उनको बताते हैं कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि दिस ब्रिज इज 756.82 मीटर्स लॉन्ग। तभी वहाँ पे कोई भी ब्रिज होता है ना, तो वहाँ पे एक जगह पर ऐसा लिखा होता है ब्रिज की कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, उसके सारे डायमेंशन जो होते हैं वहाँ पर लिखे हुए होते हैं। तो मिस आशा बच्चों को बताते हैं कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये ब्रिज जो है 756.82 मीटर्स लंबा है। सो वी कैन गेस दैट द नर्मदा मस्ट बी अबाउट 500 मीटर्स वाइड एट दिस प्लेस। तो वो लोग क्या गेस करते हैं कि नर्मदा रिवर जो है जिस प्लेस पे वो लोग थे वहाँ पर एटलीस्ट 500 मीटर्स वाइड होगी। नाउ हियर आई हैव रिटन
Since 1 kilometer is equal to 1000 meters, that is equal to 0.5 kilometers और 500 meters. अगर 1 किलोमीटर जो है वो इसका ये जो है कन्वर्जन होता है कि 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है, तो हाफ किलोमीटर कितना होगा, 0.5 किलोमीटर हो सकता है, या 1000 डिवाइडेड बाई 2 मीटर्स, दैट इज इक्वल टू 500 मीटर्स हो सकता है. सो वॉज विक्टोरिया राइट? येस, विक्टोरिया वॉज राइट, क्योंकि हाफ अ किलोमीटर का मतलब क्या हो गया, 500 मीटर्स ही होता है. I'll give some extra conversions of kilometer into meter, इसलिए आपको पता लगेगा कि कैसे कन्वर्ट करना है. So Victoria was right. सद्दाफ, I just can't imagine 500 meters. तभी सद्दाफ जो है वो बोलता है कि मैं इतना इमेजिन ही नहीं कर सकता कि how long is या how wide is 500 meters. What actual length 500 meters is about. ये जितने भी नाम हैं यहाँ पे, विक्टोरिया है, गोपी है, ये सद्दाफ है, ये सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि उस पिकनिक में गए हुए हैं. मिस आशा, मिस्टर राकेश, ये जो है वो टीचर्स हैं, those who are accompanying the children to picnic. Miss Asha, see our bus is about 5 meters long. Imagine how many buses can stand in line at this bridge. अब मिस आशा क्या बोलती हैं कि अब देखिए हमारी बस जो है वो 5 मीटर लंबी है, हमारी बस की लेंथ कितनी है, 5 मीटर्स लॉन्ग है. तो आप इमेजिन करिए कि इस यहाँ पर हाउ मनी बसेस कैन स्टैंड ऑन दिस ब्रिज. अगर एक बस की जो लंबाई है वो 500 मीटर्स है और ब्रिज टोटल जो है 500 मीटर्स वाइड है, तो कितनी बसेस यहाँ पर खड़ी हो सकती हैं, दैट यू नीड टू इमेजिन. हैव यू एवर क्रॉस्ड अ लॉन्ग ब्रिज, अबाउट हाउ मेनी मीटर्स, हाउ इट वॉज लॉन्ग. अगर कोई आपने ऐसे लंबा सा ब्रिज क्रॉस किया हुआ है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं हैव यू एवर क्रॉस्ड. अगर नहीं किया है तो यू कैन राइट नो, आई हैव नॉट क्रॉस्ड, तो यू कैन राइट सिंपली नो. अब यहाँ पे आपको देखिए 500 मीटर्स है, तो आवर बसेस, हाउ मेनी बसेस कैन स्टैंड इन लाइन ऑन दिस ब्रिज. अगर ये 500 मीटर्स वाइड है तो कितनी बसेस यहाँ पर खड़ी रह सकती हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, 500 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज इक्वल टू 100 बसेस. तो कितनी बसेस खड़ी रह सकती हैं, 100 बसेस जो हैं वो इसके ऊपर खड़ी रह सकती है. 500 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 100. नाउ नेक्स्ट इज एवरीवन लुक्स डाउन एट द रिवर. सब लोग नदी में देखने लगते हैं. मिस्टर राकेश, द वाटर लेवल नाउ इज क्वाइट लो, इट मस्ट बी अराउंड 40 मीटर्स बिलो द ब्रिज. अब जैसे ब्रिज होता है, आई कैन शो यू हियर, आपने सबने देखा होगा ब्रिज के ऊपर पुल्स होते हैं और उसमें ऐसे पिलर्स हुआ करते हैं. तो एक पिलर के अंदर ऐसे मार्किंग्स होते हैं जिसमें वाटर लेवल शो किया जाता है, जैसे 10 मीटर्स, 20 मीटर्स, 30 मीटर्स, 40 मीटर्स, अकॉर्डिंग टू द हाइट ऑफ द ब्रिज. जो भी ब्रिज होता है उसकी हाइट के अकॉर्डिंग यहाँ पे वाटर लेवल शो किया जाता है. तो मार्किंग्स होते हैं, उससे पता लगता है कि ये पानी, नदी में कितना पानी है. तो यहाँ पर क्या लिखा, मिस्टर राकेश क्या बताते हैं कि जो पानी है अभी, क्योंकि मे बी समर सीजन मस्ट बी देयर, तो वाटर लेवल हैज़ गॉन डाउन. ड्यूरिंग द समर सीजन जो पानी होता है उसका लेवल कम हो जाता है, तो 40 मीटर्स के आसपास जो है पानी का लेवल है. इट मस्ट बी 40 मीटर्स बिलो द ब्रिज, मतलब ब्रिज से जो पानी कितना है नदी में, 40 मीटर नीचे है. मिस आशा, but in the rainy season the water has risen, then it is just about 15 meters below the bridge. और जब बारिश होती है तो पानी क्या आता है, सारा जो है नदी में आता है, और उस वक्त जो है पानी का जो लेवल होता है, द वाटर लेवल इंक्रीजेस एंड इट इंक्रीजेस टू सच अ हाइट कि वो ब्रिज से नियरली 15 मीटर्स ही कम होता है. इतना ज़्यादा पानी जो है बारिश में जो है वो नदी में आता है कि ब्रिज नियरली ब्रिज को छूने जैसा हो जाता है, ब्रिज से लगभग 15 मीटर्स ही कम होता है. So what we have to find out here, what is the difference between the water level of Narmada in the rainy season and now. तो अब हमको ये डिफरेंस निकालना है कि समर सीजन में जो नर्मदा का वाटर लेवल है और रेनी सीजन में जो वाटर लेवल होता है उसमें पानी में कितना डिफरेंस है. फॉर दैट वी हैव टू डू द सब्ट्रैक्शन. 40 मीटर्स नाउ एंड 15 मीटर्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन. सो 40 minus 15, दैट इज इक्वल टू 25 मीटर्स. हियर आई हैव डन द सब्ट्रैक्शन ऑल्सो. सो दिस वे 25 मीटर्स का डिफरेंस है वाटर लेवल में नाउ एंड ड्यूरिंग द रेनी सीजन. द चिल्ड्रन डिस्कस अबाउट द रिवर फॉर सम टाइम्स. तो बच्चे जो हैं वो डिस्कस करने लगते हैं कि नर्मदा नदी में पानी कैसे, कितना लेवल होता है, क्या होता है. दे स्टार्टेड जो है डिस्कसिंग अबाउट द रिवर. सो डियर चिल्ड्रन, टुडे अप टू पेज नंबर 26 वी विल डू इन द टेक्स्ट बुक, एंड नाउ वी विल स्टार्ट आवर वर्क इन द वर्क बुक.